السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کا انتظار کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اللہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الحمد للہ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، تو میں بلا تاخیر مختصراً 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 10 روزہ دورہ بڑا ہی اہم ہے، عقیدے سے متعلق، اور اس دورے میں ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حفظہ اللہ استاد محترم ہوں گے۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ مختصراً یہاں پر شیخ محترم کا تعارف پیش کر دیا جائے۔ شیخ محترم حفظہ اللہ عصر حاضر کے ان ممتاز علمی اور تدریسی شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے علم، عمل اور دعوت کو یکجا کر کے اپنی شناخت بنائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ ایک علمی اور دینی اعتبار سے زرخیز علاقے تمل ناڈو کے ایک شہر پرنامبیٹ سے آپ کا تعلق ہے، جہاں آپ کی پرورش نہایت خدا ترس، دیندار اور صالح والدین کے زیر سایہ ہوئی۔ ابتدائی سے دینی تعلیم کا گہرا شغف اور سنجیدگی اور علمی دینداری آپ کی شخصیت کا نمایاں پہلو رہی ہے۔ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے نہایت امتیازی کامیابی اور نیک نامی کے ساتھ فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے شوق اور علمی پختگی کے حصول کے لیے عالمی شہرت یافتہ ادارہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں علمی ذوق مزید نکھرا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام عطا کیا ہے۔ یہ آپ کی علمی صلاحیت، اخلاص اور وقار ہی کا ثبوت ہے کہ تعطیلات کے دور میں جب بھی آپ وطن تشریف لایا کرتے تھے تو آپ کے مادر علمی، ہمارے اور آپ کے مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد میں آپ کو تدریسی خدمات کے لیے مدعو کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں فراغت کے بعد آپ مستقل طور پر جامعہ دارالسلام عمر آباد سے تدریسی خدمات کے غرض سے منسلک ہو گئے۔ آپ ایک کامیاب مدرس ثابت ہوئے الحمدللہ ہمارے اساتذہ میں سے، اور بلکہ کہا جائے تو الحمدللہ بڑے ہی ممتاز اساتذہ میں ہیں آپ ہیں الحمدللہ۔ طلباء کے دلوں کی دھڑکن اور ان کے لیے ایک مشفق مربی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی علمی زندگی کا، عملی زندگی کا ایک روشن پہلو وہ واقعہ ہے کہ آپ نے ہم طلباء کو حوصلہ دلانے کے لیے اور دین پر عمل کا جذبہ دلانے کے لیے آپ بیان کیا کرتے تھے
کہ جامعہ میں اپنے طالب علمی کے دور میں جب آپ نے غالباً شیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ کے درس میں یہ حدیث سنی کہ 40 دن بعد جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کی فضیلت، تو اس نصیحت کے بعد اس نصیحت نے آپ کی زندگی پر ایسا گہرا اثر ڈالا کہ اس کے بعد کبھی بھی آپ سے جماعت کے ساتھ نماز فوت نہ ہوئی۔ اور یہ جو آپ کے اخلاص، استقامت اور عملی دینداری کی زندہ مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تادم حیات دین کی خدمت کا موقع دیتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی اس دورے میں بہت ساری چیزیں شیخ کے تعارف سے متعلق بیان کرنی تھیں، لیکن چونکہ وقت بھی بڑا مختصر ہے اور آلریڈی وقت گزر بھی چکا ہے، تو میں بلا تاخیر شیخ محترم سے درخواست کروں گا کہ اس درس کا آغاز کریں۔ فلیتفضل مشکورا، جزاکم اللہ خیرا، ہمارے اس دعوت پر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ہماری اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے۔ شیخ آپ اگر ویڈیو آن کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم انه لا الہ الا اللہ. قابل احترام مولانا حافظ عثمان الماس عمری حفظہ اللہ ورعا، و محترم ذمہ داران مشن آف صفہ، قابل احترام طلباء اور طالبات، یہ محض اللہ کی توفیق ہے اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ ہم سب نیک مقاصد کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جمع ہونے کا مقصد اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، کتاب و سنت کی روشنی میں توحید کا صحیح علم حاصل کرنا، اپنے دل کو توحید سے ہمیشہ آباد رکھنا، منور رکھنا، اور اس توحید کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ توحید پہ لانا، خود کو جہنم سے بچانا، نئی نسل کو فکری گمراہیوں سے بچانا، یہ ہمارے نیک مقاصد میں شامل ہیں۔ اور بإذن اللہ یہ ہماری ملاقات بظاہر مختصر سہی، لیکن ان 10 محاضرات میں عقیدے کے حوالے سے خذ عقیدتک من الکتاب والسنہ الصحیحہ، اس کتاب کی روشنی میں بہت ساری باتیں بإذن اللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے ساتھ مشن آف صفہ کے ذمہ داران کا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ انہوں نے سنہرا موقع عنایت فرمایا، اور آپ طلباء اور طالبات کی خدمت میں بھی ہم ہدیہ تشکر اور تبریک پیش کرتے ہیں۔ مصروف زندگی میں اس علمی پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا، اللہ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ پروردگار آپ تمام سے راضی ہو جائے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک پروردگار توحید پہ باقی رکھے، توحید پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، کہ مصداق ہم توحید پہ باقی رہیں گے، توحید کا درس عام کریں گے، توحید سیکھیں سکھائیں، توحید پہ باقی رہیں،
तौहीद की जानिब औरों को दावत दें। इन नेक जज्बात के साथ हम आपकी खिदमत में इस मुबारक क्लास का आगाज करने जा रहे हैं। अल्लाह से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए। जो कुछ हम और आप हासिल कर रहे हैं, इसे मेरे और आपके मीज़ान हसनात में शामिल फरमाए, इल्म नाफिअ से माला माल फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफिआ। बार बार पढ़ते रहें, अपनी नीयत को दुरुस्त करते रहें, खालिस करते रहें। और पढ़ने का मकसद जिंदगी में इस इल्म के मुताबिक बदलाव लाने की कोशिश करना, इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम जमीआन। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, हमारे सामने जो किताब है, खुद अकीदतक मिनल किताबी व सुन्नति सहीहती, इसके फाजिल मुअल्लिफ हैं मोहम्मद बिन जमील जैनू रहीमहुल्लाह। इसके फाजिल मुअल्लिफ हैं मोहम्मद बिन जमील जैनू रहीमहुल्लाह। कोई भी किताब हम पढ़ते हैं तो उस किताब को लिखने वाले कौन हैं ये जानना चाहिए, क्योंकि सुबहान अल्लाह, मुअल्लिफ को जानने से किताब की कद्र व मंजिलत और बढ़ जाती है। और इस किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या है? दो नुमायां खूबियां हैं इस किताब की। पहली खूबी यह है, किताब को अस्इला व अजवीबा, सवालो जवाब के तर्ज पर मुअल्लिफ ने ढाला है, जो हर दारिस को, हर कारी को, हर पढ़ने वाले को समझने में आसानी होती है। सवाल किया जाए, फिर उसका जवाब दिया जाए, वो बात जहन में बैठ जाती है। ये अंदाज, ये उस्लूब कुरानी उस्लूब है। वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा वयसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर यसअलूनका अनिल अहिल्ला क़ुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज। बहरहाल, ये मुख्तलिफ आयतें जो हमने आपके सामने पेश की, हकीकत में ये कुरानी उस्लूब है। पहले सवाल किया जाए, फिर उस सवाल के तर्ज पर जवाब दिया जाए, तो सामिअ कारी को वो बातें आसानी से समझ में आती हैं और वो बातें हजम हो जाती हैं। इस किताब की बड़ी खूबी यही है कि सुबहान अल्लाह, इस किताब को सवाल जवाब के अंदाज में मुअल्लिफ ने ढाला है। और दूसरी खूबी यह है इस किताब की, सुबहान अल्लाह, हर जवाब को अदिल्ला से मुज़य्यन किया गया। हर जवाब को कुरानी आयतों और अहादीस नबविय्या से जोड़ा गया, मुज़य्यन किया गया। ये इस किताब की दूसरी नुमायां खूबी है। इस किताब को पढ़ने से कई नुसूस आप याद कर ले सकते हैं। बहुत सारी आयतें, अहादीस जहन में महफूज हो जाती हैं। कोशिश कीजिएगा, जैसे जैसे हम सबक लेते चलें, जो आयतें यहां मौजूद हैं उन आयतों को आप जहन में बिठा लीजिएगा। उसका फायदा क्या है? अगर कहीं आपको तौहीद पे कुछ बोलना है, मसलन आपके सामने कोई मुशरिका है, आपके सामने कोई गैर मुस्लिम भाई है, आपके सामने कोई गैर मुस्लिम बहन है, उसकी खिदमत में अगर आप तौहीद की बात कर रहे हैं और अपनी बात को कुरानी आयात से जोड़ रहे हैं, वल्लाहिल अज़ीम बात में तासीर पैदा होती है। मैदान दावत से जुड़े दुआत कहते हैं, बाज मर्तबा हमें आयात करीमा की हम तिलावत करते हैं, वजाहत करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाले का दिल हिदायत से मालामाल हो जाता है, अल्लाह हिदायत दे देता है। आयात करीमा में वो तासीर है। इसीलिए हम आपसे अपील करेंगे, मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, आप अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात करीमा को याद करते चलें और अहादीस को जहन में बिठाते चलें, बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल, किताब की ये दो नुमायां खूबियां हैं। एक, सवालो जवाब के तर्ज पर इसको ढाला गया,
اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ہر جواب کو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے ذریعے مزین کیا گیا۔ اب آئیے کتاب کے جو مؤلف ہیں ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ کتاب کے جو مؤلف ہیں یہ ابھی چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی، زیادہ قدیم نہیں ہیں، ابھی قریب کے ہیں۔ 1430 پر 1 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ہم کون سی ہجری سے گزر رہے ہیں؟ 1440 پر 7، 1430 پر 1 ہجری میں آپ رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے، یعنی 2010 میں۔ ہم 2025 میں ہیں تو 2010 میلادی میں آپ رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے۔ اصل کہاں سے تھے آپ؟ سوریہ کے رہنے والے تھے آپ۔ سوریہ کی ایک بستی جو حلب ہے، حلب کے رہنے والے تھے آپ۔ قرآن مجید کو آپ نے یاد کیا اور مختلف علوم شریعت میں آپ نے مہارت پیدا کی، خاص کر میدان فقہ اور میدان عقیدہ، یہ دو آپ کے خاص میادین تھے۔ اور شیخ کی ایک اہم خوبی یہ تھی، شیخ علوم عصریہ جو دینی مواد ہیں، ان دینی مواد سے بھی آپ کو شد بدھ حاصل تھی، دینی مواد میں بھی آپ کو، دنیاوی علوم میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی۔ آپ رحمہ اللہ سرزمین مکہ آئے تو شیخ بن باز رحمہ اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے سامنے آپ نے اپنا علمی جوہر دکھایا، انٹرویو مقابلہ شخصیہ ہوا، تو شیخ نے سبحان اللہ آپ کو حرم مکی میں بحیثیت مدرس آپ کا تقرر فرمایا۔ بحیثیت مدرس شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے آپ کا تقرر فرمایا۔ پھر ایک مدت کے لیے آپ حلب لوٹ گئے، سوریہ لوٹ گئے، پھر آخری زمانے میں آپ آئے تو مکہ مکرمہ میں جو دارالحدیث ہے، دارالحدیث کے آپ آخری ایام تک بحیثیت مدرس آپ خدمات انجام دیے۔ دارالحدیث تو خاص کر مکہ جاتے ہیں ہمارے طلبہ، الحمدللہ وہ اس دارالحدیث سے واقف ہیں۔ ہم بھی جب مدینہ سے مکہ جاتے تھے تو دارالحدیث میں ہم قیام کرتے تھے۔ ہم طلبہ کا قیام دارالحدیث میں ہوا کرتا تھا، جو کعبۃ اللہ کے بہت قریب ایک ادارے کا نام ہے۔ اس ادارے میں دینی مواد، خاص کر فقہ، تفسیر اور عقیدہ آپ پڑھاتے تھے۔ فقہ، تفسیر اور عقیدہ آپ رحمہ اللہ دارالحدیث میں پڑھاتے تھے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں معزز طلبہ اور طالبات؟ بس اشارہ کیجئے گا ہاتھ سے، جیسے آج کل ماشاءاللہ آپ کو یعنی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ یبارک فیکم، بارک اللہ فیکم۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید میری آواز کچھ صحیح سمجھ میں نہ آئے، تو آپ لوگ انشاءاللہ پوچھئے گا، اور میں خاص کر آپ سے اپیل کروں گا، یہ کوئی عام تقریر نہیں ہے۔ یہ تقریر میں ہوتا کیا ہے کہ مقرر کہتے جاتے آپ سنتے جاتے، آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اشکال ہے، الحمدللہ آپ اسے نوٹ کیجئے گا، یا تو آپ آج موقع ملے تو پوچھئے گا، یا اگلی کلاس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سوال کرنا چاہیں تو سوال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ تو بہرحال یہ محمد بن جمیل زینو جو سوریہ کے رہنے والے تھے، سرزمین حلب سے آپ کا تعلق تھا۔ 1430 پر 1 ہجری 2010 میلادی میں آپ رحمہ اللہ وفات پا جاتے ہیں۔ آپ کی یہ کتاب جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو مرتب کیا، علمی دنیا میں خاص پہچان رکھتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مشن آف صفا کے ذمہ داران کو، انہوں نے اس عظیم اور بہترین کتاب کا انتخاب کیا۔ چلیے، کتاب کا ٹاپک بہت واضح ہے، عقیدہ توحید، اور کتاب کا ایگزیکٹ معنی کیا ہے؟ خذ عقیدتک، اے میرے بھائی اپنا عقیدہ لیجئے گا، اے میرے بھائی آپ اپنا عقیدہ لیں، من الکتاب والسنت الصحیحۃ، قرآن مجید سے حاصل کیجئے، سنت سے آپ اپنا عقیدہ لیجئے گا۔ اللہ اکبر! کیا ہی مبارک ہیں وہ سینے جو سینے توحید سے آباد ہیں، اور ان سینوں کو جو توحید کا علم ملا ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ملا ہے۔ کیونکہ بعض اللہ کے بندے توحید سیکھنا چاہتے ہیں،
लेकिन सही मनहज के लोग नसीब नहीं होते। अकीदे के नाम पर अकीदे का कत्ल करते हैं, अकीदे के नाम पर अकीदे को बिगाड़ते हैं, मनहज के नाम पर मनहज का खून करते हैं। ऐसी नाजुक घड़ी में, ऐसे नाजुक दौर में अल्लाह ने मुझे और आपको सही समझ दी है, सही मनहज दिया है, सही अकीदा सीखने की तौफीक दी है। वल्लाही बहुत बड़ी नेमत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी इल्मी दुनिया को संवारने के लिए मजीद कुछ अहम बातें सुनिएगा। मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, उमूमन सवाल ये किया जाता है, मौलाना अकीदे में हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। मैं कुछ किताबें आपको बताता हूं, गौर से सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो हमारे पास मुख्तसर चंद दिन है। दुआ कीजिएगा, अगर अल्लाह ने मुस्तकबिल में तौफीक दी तो इल्म तौहीद एक समंदर है, इल्म तौहीद एक समंदर है, उसमें गोता जन होते चलें तो कभी वो प्यास बुझने वाली नहीं, ये तिश्नगी कभी खत्म होने वाली नहीं। ऐसी तिश्नगी और ऐसी प्यास जो कभी बुझने वाली नहीं। अल्लाह कभी मौका दे, इंशाअल्लाह पूरी तफसील से इस समंदर में हम गोताजन होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अब चंद दिन हैं, हम कोशिश करेंगे आपका लम्हा लम्हा हम उसको सही रुख पे ले जाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कि आपका वक्त ज़ाय ना हो। आप जिस कदर मुमकिन हो सके हमारी इस क्लास से और इस प्रोग्राम से आप फायदा उठाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। तो अमूमन सवाल किया जाता है, अकीदे में क्या पढ़ना है मौलाना। तो देखिएगा, हमारे पास अकीदे के 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्या है? पहले स्टेज में आप 3 किताबों को बुनियाद बनाइएगा। अगर ये 3 किताबें अगर आप अच्छी तरह से हजम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तौहीद में, अकीदे में एक दिलचस्पी आपको आ जाएगी। इंशाअल्लाह इल्म तौहीद में आपको दिलचस्पी आ जाएगी। पहली किताब जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख आपकी आवाज़ कट गई है। हम्म, इंशाल्लाह थोड़ा सा इंतजार करें बस शेख, अभी जुड़ रहे हैं, कुछ मसला है शायद। आप लोग सब्र से रहें, निकले मत।
माजरत मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, असल यहाँ पर नेटवर्क का अचानक कभी इशू हो जाता है। माजरत, आजकल जियो का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है माजरत के साथ। कि अगर कभी ऐसा हो तो बराए मेहरबानी 1-2-3 मिनट इंतज़ार कर लें। अल्लाह जज़ा खैर दे आप तमाम को, अल्लाह खुश और आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आप इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए आप तमाम को। अल्लाह आप तमाम से राज़ी हो जाए, आमीन या रब। तो बहरहाल हम बता रहे थे कि उमूमन ये सवाल किया जाता है कि मौलाना अकीदे में असल किन किताबों से हमारी शुरुआत होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा, आप इन 3 किताबों को बुनियाद बनाइएगा। अल उसूल सलासा है, बड़ी अच्छी किताब है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह की, जिसमें 3 सवालात उन्होंने किए हैं, जो कब्र में किए जाने वाले सवालात, उन सवालात का वो मुख्तसर जवाब है। मन रब्बु का, मन नबीयु का, मा दीनु का, कि तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन कौन सा है और तुम्हारे नबी कौन है। दूसरी किताब है अल कवाइदुल अरबा, जिसमें 4 अहम कवाइद बयान किए गए। और ये भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह की किताब है। और तीसरी किताब है नवाकिजुल इस्लाम। इस्लाम वो कौन से उमूर हैं जिन पर आप तवज्जो ना दें, जिनको आप इख्तियार कर लें, अल्लाह रहम फरमाए दीन इस्लाम से आप निकल जाएंगे, राह ईमान को आप छोड़ देंगे, राह कुफ्र को आप इख्तियार कर लेंगे। तो नवाकिजुल इस्लाम, 10 इस्लाम को तोड़ने वाली चीजें उसमें बयान की गई हैं। ये 3 बहुत ही अहम किताबें हैं, इनका आप मुताला करें। अल उसूल सलासा, अल कवाइदुल अरबा, और इसी तरह से नवाकिजुल इस्लाम। और उसके बाद दूसरा मरहला है, आप किताब तौहीद पढ़िएगा, जिसमें 60 पर 8, 60 पर 9 चैप्टर्स हैं। वल्लाह ये बड़ी जामे किताब है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह की। और इन किताबों की खूबी यह है कि आप अपनी इलाकाई जबान में पालेंगे। आप अंग्रेजी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, आपकी इलाकाई कोई जबान है, तो उन जबानों में अल्हम्दुलिल्लाह ये किताबें दस्तयाब हैं। और उसी तरह से दूसरे मरहले में जो दूसरी किताब आप पढ़ सकते हैं वो है यानी कश्फुश शुबहात। इस किताब का भी मुताला दूसरे मरहले में कर सकते हैं आप किताब तौहीद के बाद। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह की बड़ी जामे जो है किताब है ये, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह की बड़ी जामे किताब है कश्फुश शुबहात, जिसमें उन्होंने जमाने जाहिलियत के मसाइल को बड़े अच्छे अंदाज में जो है उन्होंने बयान किया है। और इसी तरह से आप अल अकीदा अल वासितिया, एक मुख्तसर आप उसका दिरासा कर ले सकते हैं आप, जो इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह की बड़ी शाहकार तसनीफ है अकीदे के बाब में, अल अकीदतुल वासितिया। और इसी तरह से एक और किताब है जो अभी सऊदी अरब के जो काजी हैं, अल्लाह सलामत रखे, शेख मोहम्मद सालेह अल फौजान हफिजहुल्लाह, तो आपकी लिखी गई किताब अल इरशाद, किताबुल इरशाद लिसहीहिल इअतिकाद, किताबुल इरशाद लिसहीहिल इअतिकाद, ये सालेह अल फौजान हफिजहुल्लाह की बड़ी जामे जो है किताब है अकीदे की, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से हाफिज अल हकमी रहीमहुल्लाह की एक किताब है मारिजुल कबूल, मुख्तसर मारिजुल कबूल, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये किताब भी इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद आपको साबित होगी। तो बहरहाल मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, आप इन किताबों को अपने मुताले में रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुताले में काफी आगे बढ़ रहे हैं, अकीदे में मजबूती आ रही है, और ज्यादा आपके अंदर एक हिर्स, एक तड़प पैदा हो रही है। तो आप क्या कीजिएगा, एक किताब है बड़ी जामे है उसूल सुन्ना, अहमद इब्न हम्बल रहीमहुल्लाह की, इमाम अहली सुन्ना वल जमा आपको कहा जाता है, जिनकी वफात 240 पर 1 हिजरी में हुई। 3rd सेंचुरी के जबरदस्त आलिम दीन, इमाम अहली सुन्ना वल जमा, चौथे इमाम जो तरतीब के एतबार से अहमद इब्न हम्बल रहीमहुल्लाह की लिखी गई किताब इल्मी दुनिया में अपनी एक शान रखती है, उसका नाम है उसूल सुन्ना। और इसी तरह से एक और किताब है, अगर आप चाहें तो उसको अपने जहन में रखकर आप तलबतुल इल्म और तालिबात मुस्तकबिल में कभी पढ़ सकते हैं। इमाम बरबहारी रहीमहुल्लाह की किताब, अबू मोहम्मद अल बरबहारी की किताब शरह सुन्ना, शरह सुन्ना, इस किताब को भी आप मुताला कर सकते हैं।
और इसी तरह से एक और किताब है इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह की, इक़्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम, इक़्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम। ये भी बड़ी उम्दा किताब है इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह की, इसका भी आप मुताला कर सकते हैं। और इसी तरह से एक और किताब है इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह की, अल फुरकान बैन औलियाइर रहमान व औलियाइश शैतान, अल फुरकान बैन औलियाइर रहमान व औलियाइश शैतान। ये इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह की बड़ी अच्छी किताब है। तो बहरहाल ये हमारी क्लास रिकॉर्ड भी होती है, आप चाहें तो दोबारा भी सुनकर उन नामों को नोट कर सकते हैं। बहरहाल ये चंद किताबें हैं, आपने अगर इनका मुताला किया तो खुद ब खुद आपके अकीदे में वल्लाहिल अजीम मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात मजबूती आएगी। अस्मा व सिफात की बहस में, अस्मा व सिफात की बहस में इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह की किताब बड़ी उम्दा मानी जाती है, अल कवाइदुल मुस्ला, अल कवाइदुल मुस्ला। ये शेख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह की किताब है जो अस्मा व सिफात के बाब में लिखी गई बड़ी उम्दा किताब है। और अगर आप उर्दू हलके से ताल्लुक रखते हैं, हिंदुस्तान के तनाजुर में हिंदुस्तान के माहौल को सामने रखते हुए एक किताब लिखी गई, खासकर लिखने वाले अरब के मशहूर आलिम दीन हमारे उस्ताद मोहतरम अबू बकर अल जज़ाइरी रहिमहुल्लाह हैं, जो ऐसरुत तफासिर एक मुख्तसर तफसीर है, तफसीर की किताब है, उसके आप मुअल्लिफ हैं। ऐसरुत तफासिर जो अबू बकर अल जज़ाइरी रहिमहुल्लाह की किताब है, आपने अकीदे पर एक किताब लिखी, बड़ी जबरदस्त किताब है। और इस किताब की खूबी क्या है, आप इस किताब को पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि शेख ने हमारे माहौल को सामने रखकर किताब लिखी है। उर्दू में है किताब ये, अकीदतुल मुमिन, अकीदतुल मुमिन, अकीदतुल मुमिन। ये अबू बकर अल जज़ाइरी की किताब है जो माशाअल्लाह जो है अरबी अरबी में असल ये किताब लिखी गई, उर्दू में इसका ट्रांसलेट हुआ है। आप अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को पढ़ेंगे ना तो अकीदे में पाई जाने वाली जो मुख्तलिफ खराबी, फिक्री इनहिराफ कहते हैं, वो सारी बातें इसमें मौजूद हैं। तो जिन किताबों के नाम हम पेश किए वो बातें समझ में आई, एक मुख्तसर दोहराता हूं, देखिए। अल उसूल सलासा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह, अल कवाइदुल अरबा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह, नवाकिजुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह, किताबुत तौहीद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह, मुख्तसर मारिजुल कबूल हाफिज अल हकमी रहिमहुल्लाह, किताबुल इरशाद, किताबुल इरशाद लिसहीहिल इअ्तिकाद शेख सालेह अल फौजान हफिजहुल्लाह। और इसी तरह से अल अकीदतुल वासितिया इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह, और शरह सुन्ना अबू मोहम्मद अल बरबहारी, इख्तिदाउ सिरातिल मुस्तकीम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह, अल फुरकान बैन औलियाइर रहमान व औलियाइश शैतान इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह, उसूलुस सुन्ना, उसूलुस सुन्ना अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह। और इसी तरह से अकीदतुल मुमिन अरबी में भी है, उर्दू में भी है, आप उर्दू में मुताला कीजिएगा, वल्लाही बड़ी अच्छी ज़ख़ीम किताब है, पूरी किताब आप ख़त्म करके रहेंगे। अकीदतुल मुमिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में भी दस्तयाब है मुख्तलिफ मकतबात में। और एक किताब अस्मा व सिफात की बहस में हमने पेश की, अल कवाइदुल मुस्ला, जो इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह की है। और वल्लाही दोस्तों, आप अकीदे को पढ़िएगा तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह को जानते लोग क्यों जिक्र करते हैं, आप हकीकत में 3rd सेंचुरी के, 12th और 13th सेंचुरी के जबरदस्त आलिम दीन हैं। 1206 हिजरी में आप रहिमहुल्लाह की वफात होती है, और जब सऊदी अरब और सऊदी हुकूमत कायम हुई 1150 पर 7 हिजरी में मोहम्मद बिन सऊद रहिमहुल्लाह के हाथों, तो उस वक्त से सुबहान अल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह बराबर अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत के साथ आप जुड़े रहे। और सरजमीन अरब में जो मुख्तलिफ तौहीद के खिलाफ शिरक के मज़ाहिर पाए जा रहे थे, अल्लाह ताला ने आपसे बहुत काम लिया और शिरक की बुनियादों को आपने सरजमीन अरब से उखाड़ फेंका।
सरजमीन अरब से आपने शिर्क के मज़ाहिर को निकाल फेंका और वहां पर तौहीद की किंदील, तौहीद की शमएं आपने वहां रोशन की, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने। इसीलिए आप सुबहान अल्लाह मुजद्दिद कहलाते हैं दीन में। अल्लाह ताला ने आपसे वो काम लिया एक जमाने के बाद जब दीन में बिगाड़ आया, अल्लाह ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह के जरिए से वो जबरदस्त आपने खिदमत अंजाम ली। बहरहाल इसीलिए लोग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह का नाम लेते हैं। अलमुहिम ये बुनियादी तौर पर कुछ बातें रहीं मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात। वैसे हमने यानी किताब का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर आज नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं पहला मुहाजरा उमूमन ये किताब के मुअल्लिफ और जो फन हम पढ़ने जा रहे हैं अकीदा, उसके हवाले से। और वाकई दोस्तों एक बात मैं आपको अर्ज करूंगा, इस दौर में हर मुसलमान को जिस पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वल्लाही बिल्लाही तल्लाही, वो यही तौहीद है। सबसे ज्यादा जो है तवज्जो हम तौहीद पे दें, क्योंकि ये ऐसा इल्म है, हमने इस पे तवज्जो ना दी, ये दिलों से रुखसत हो जाएगा, ये जिंदगी से रुखसत हो जाएगा और हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह जज़ाए खैर दे। इसी तौहीद को बचाने के लिए हम और आप यहाँ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आने वाली क्लासेस में भी आप लोग हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। और दरअसल शेखना उस्मान साहब, एक बात यह है कि कल जामिया में एक हमारा प्रोग्राम है ईशा के बाद असातिज़ा का। अगर आप इजाज़त दें कल 7 या 7:30 बजे जमा हो सकते हैं मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात। हंगामी सूरत में अगर कभी ऐसा हो तो मुमकिन है 7 साढ़े 7 बजे आप जमा हो सकते हैं। हैंड रेस करके आप जवाब दे सकते हैं इंशाल्लाह आप लोग। हाँ, क्या इंशाल्लाह शेख, तो असल क्या है कल असातिज़ा बेहतर का है। वहाँ इंतखाब है शेख। इंशाल्लाह अगर आप कहें तो कल 7:30 बजे जैसा आप कहेंगे इंशाल्लाह। हाँ कल, हाँ 7 या 7 जैसे अला अला राहती को आप इंशाल्लाह जो है एक ग्रुप पहली फुर्सत में बनाइएगा शेख आप, ताकि आसानी हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तनसीख करने में। जज़ाकल्लाह खैरन अल्लाह जज़ाक। ज़ाखिर दे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप तलबा और तालिबात आएंगे इंशाल्लाह। कभी कभार ऐसा हंगामी सूरत में इंशाल्लाह कभी कुछ मामला हो जाए, आप साथ दीजिएगा। और वैसे जामिया में सुबहान अल्लाह अंजुमनों का सिलसिला और प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग साथ देंगे। और कभी मुमकिन हो सके तो इंशाल्लाह हम कभी दिन भी बदल देंगे आप लोगों की सहूलत को भी सामने रखकर इंशाल्लाह। ठीक है ना जी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बारकल्लाह बारिक फीकुम। फीकुम। बहरहाल चलिए। कुछ भी इश्काल हो तो अगली क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, किताब के हवाले से या हमारी कोई गुफ्तगू है। और बाज़ाब्ता इंशाल्लाह अगली क्लास में हम किताब शुरू कर देंगे और दीगर बहुत सारी मालूमात इंशाल्लाह हम आपको फराहम करते चलें इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम। हयाकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।